Yes, good morning everyone. We have started chapter 5 algebraic expressions. Till last class, we have completed exercise 5.1 and question number 1 of exercise 5.2 also. Okay, I told you what are coefficients. मैंने आपको बताया था coefficients क्या होते हैं. So, if I want to find the coefficient of any given factor in a term, किसी भी term में मुझे किसी भी factor का coefficient find करना है, तो the other coefficient factors that are getting multiplied with the given factor, उस फैक्टर से अदर जितने भी फैक्टर उस टर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट्स होते हैं. मैंने पहले आपको बताया था. आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट आर कांस्टेंट टर्म्स. द टर्म इन एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच नो वेरिएबल इज प्रेजेंट. जिस टर्म में कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली कांस्टेंट इज देयर, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. एंड I also told you what are constant terms. Constant terms are those terms in an algebraic expression in which no variable is present. So today we will do start with question number 2 of exercise 5.2. The question is, write the constant terms. The algebraic expressions are given to you, and in that expressions you have to write constant terms. So A part is minus 3x square minus 2x minus 27. So what will be the constant term here? You can see in the third term, no variable is present. फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, सेकेंड टर्म में द वेरिएबल इज एक्स, बट इन द थर्ड टर्म नो वेरिएबल इज प्रेजेंट. सो -27 will be the constant term. I told you whenever you have to write the term or factor or constant term or coefficient, you have to write the sign with the variable or number. Yes, so -27 will be the constant term. Okay. Now C part is 7 upon 5 plus 2 upon 3x square minus 15 upon 16x square. So tell me students, which one will be the constant term here? Yes, it is 7 upon 5. So constant term is equals to 7 upon 5, because you can see in the second or third term variable is present, that is x square, but in the first term no variable is there, hence it is constant term and it is 7 upon 5. Okay. E part, u into v into w upon 3. Now how can we write this? It will be 1 upon 3 into u into v into w. Okay, so fraction is getting multiplied with these three variables, and this fraction is a constant. But okay, first of all tell me, is it a one term or separate terms? 1 upon 3 u v w, ये एक ही टर्म है, अलग अलग टर्म्स हैं? It is one term only, because only multiplication operation is present there, no plus and minus sign are over there, hence it is one term only. क्योंकि terms जो होती हैं plus minus sign से separate होती हैं, but यहाँ पे आप देख सकते हैं plus minus sign तो है नहीं, so it is only one term. This is one term only. और इस term में आप देख रहे हैं 1 upon 3 is the constant and u v w are the variables. इस term में variables present हैं, that is u v and w, बट कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, बट इस टर्म में वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, सो नो कांस्टेंट टर्म इज देयर. कोई कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. सो कांस्टेंट टर्म हेयर नन, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ई पार्ट में. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन फैक्टर्स. जो फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, जिन फैक्टर्स के कोफिशिएंट्स पूछे हुए हैं, उनके कोफिशिएंट आपको बताने हैं, और ये आपको क्या दिए हुए हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और टर्म्स. ठीक है, तो इस टर्म के अंदर x का पूछा हुआ है. कोफिशिएंट ऑफ x इन 12x. 12x term is given to you and it is asking the coefficient of x in the given term.
ओके यस गुड, इट इज 12। ओके, हाउ इज इट 12? मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी फैक्टर का, उस टर्म में अदर फैक्टर्स जो उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x का कोफिशिएंट पूछा है तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा यहाँ पे 12, सो 12 विल बी दी कोफिशिएंट, इट इज इजी। बी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इन माइनस 7x क्यूब। ओके, अब हमें ये देखना है कि इस टर्म में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है -7x³ ये टर्म दी हुई है पर्टिकुलर, इसमें -x² किसका किसे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? नो, इट इज नॉट -7 ओनली, -7x³ है बेटा, क्यूब मीन्स पावर इज 3, यस इट इज 7x -x², माइनस साइन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था जिसका फैक्टर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए वो फैक्टर आप उस टर्म में से हटा दीजिए। माइनस साइन साथ में ले रहा है ये, तो यहाँ पे माइनस साइन हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर साथ में ले रहा है तो x³ यानी पावर 3 है, उस 3 पावर में से 2 अगर पावर हटा देंगे तो ओनली एक ही x बचेगा और कांस्टेंट आएगा साथ में 7, सो 7x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ -x² इन -7x³। मैं यहाँ पे इसको आपको ओपन करके बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। -7x³ कैन बी रिटन एज -7 इंटू x इस तरीके से लिखा जा सकता है -7x³ को। मुझे कोफिशिएंट चाहिए -x² का, तो -x² से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -x² मीन्स x इज गेटिंग मल्टीप्लाई फॉर 2 टाइम्स, तो ये हो गया, ये तीनों तो मिलके क्या बनाएंगे -x², ठीक है। इनटू अब क्या क्या बचा जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 and x, so 7x is getting multiplied with -x² in this term। अगर आपको समझ में नहीं आता है you can simplify the term को आप बिल्कुल खोल के ओपन करके देख सकते हैं। so -x² into 7x, -x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, क्या बचा 7x, so 7x will be the coefficient। okay, now the f part is coefficient of uv in 5 UVW। यूवी फैक्टर का कोफिशिएंट फाइंड करना है इस टर्म में से, तो मैंने आपको क्या बताया, यूवी को इसमें से रिमूव कर देंगे तो उस टर्म में बाकी जो बचेगा दैट विल बी दी कोफिशिएंट। यूवी अगर मैंने 5 UVW में से रिमूव कर दिया तो 5 और W बचा सिर्फ, सो 5W विल बी दी कोफिशिएंट ऑफ यूवी। यस गुड स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल understand how to find the coefficient in a given term of a factor, ठीक है। so now the fourth question, identify like and unlike terms। you have to identify like and unlike terms, whether the terms are given terms are like or unlike। homework I will tell you at the end of the class। so a part is 2y 7y 3y and -2y। ये चार टर्म्स आपको दी हुई है, उसमें आपको फाइंड करना है ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। दीज ऑल आर लाइक टर्म्स, ओके। लाइक टर्म्स, whenever we have to find like terms we just see the variable and its power। कांस्टेंट को नहीं देखना है, ओके। कांस्टेंट यहाँ पे सब में डिफरेंट है, लेकिन हमें कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है when we have to find whether the terms are like or unlike, ठीक है। So see, in the four terms variable is same y and power of y is also same 1, so these all are like terms, okay। B part 4xy 2x² y minus 3xy square, टू टर्म्स दी हुई है यहाँ पे, एक टर्म है 4xy और सेकंड टर्म ये पूरी है कंप्लीटली जिसमें माइनस साइन बीच में लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं क्योंकि माइनस साइन से सेपरेट हो रही है, तो इन तीनों टर्म्स में आपको बताना है विच आर दी लाइक टर्म्स और विच आर अनलाइक टर्म्स। यू कैन सी वेरिएबल इज सेम xy and xy, but their powers are not same। yes good Vanshika, it is unlike terms, these all are unlike terms because the powers of variables are not same।
यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगेन 1 है, फिर यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ अगेन 2 है, तो पावर सेम नहीं है किसी भी टर्म में आपस में, ठीक है। सो दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स। C part, 2ab square, 3ab square, minus 7ab square. Yes, these all are like terms. AB, variables are same and their powers are same. 1, 2, 1, 2 and 1, 2. A की पावर 1 है तीनों में और B की पावर 2 है. So these all are like terms. सिर्फ variable same होने से मतलब नहीं होता है बेटा. You also have to look at their powers. Powers भी same होनी चाहिए variables की and no need to see constants. Constants का कोई relevant नहीं है यहाँ पे. E part, 3x square y 6x z square minus 4 yz square and minus 22x yz. Yes, these all are unlike terms. You can see variables ही same नहीं है किसी भी term में. Power तो बाद में देखनी है, पहले we have to look the variables, but variables are not same in these four terms. xy, xz, यहाँ पे y और z different variables हो गए. xz, yz, यहाँ पे x और y different variables हो गए. इसमें x प्रेजेंट नहीं है जबकि यहाँ पे x प्रेजेंट है. सो दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स. ओके. G part, 5acd square minus 4acd square 7acd square. Yes, good students, these are like terms. I hope you all have understand it very clearly. बहुत अच्छे से समझ गए हैं आप लोग. ACD variables are same and their powers are also same. 113, 113 and 113. A की पावर 1 है तीनों में, C की पावर भी तीनों में 1 है and D raised to the power of 2 in the three terms. So these all are like terms. So this was the classwork for today and now I will tell you the homework for today. The homework is 17 September homework. Exercise 5.2. Three questions we have done today. Question number 2, 3 and 4. So question 2, you have to do B and D part. In question 3, you have to do C, D and E part. And in fourth question, you have to do D, F and H part. D, F and H part. Okay, this is the homework. आपको लग रहा होगा मैम ये बहुत ज़्यादा है, but ज़्यादा नहीं है. बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ये. बस आपको फोर्थ क्वेश्चन में लाइक और अनलाइक टर्म्स बताना है. थर्ड क्वेश्चन में जस्ट यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स और सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू राइट कांस्टेंट टर्म्स. एक एक वर्ड्स के दो दो वर्ड्स के आंसर्स हैं इनके. सो दिस इज द होमवर्क. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, दीज पार्ट्स यू हैव टू डू इन टुडेज होमवर्क. थैंक यू क्लास.